بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی، میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی، اگر میری زباں اردو نہیں ہوتی۔ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر میں اردو زبان سے محبت اور اپنائیت کے رشتے کو بخوبی انداز سے نبھاتے ہوئے اردو زبان و ادب کے چاہنے والوں کی محفل سجاتے ہوئے اردو ادب میں تکرار الفاظ ایک جائزہ نامی شاندار کتاب کی تقریب رونمائی انجام میں لائی گئی۔ انڈیا اردو انسٹیٹیوٹ بنگلور کی جانب سے 27 جولائی 2024 بروز ہفتہ دوپہر کے 4 بجے بمقام دارالسلام بلڈنگ، کوئنس روڈ، بنگلور میں بہترین اور عمدہ کتاب بنام اردو ادب میں تکرار الفاظ ایک جائزہ کی تقریب رونمائی کو منعقد کیا گیا۔ اس اعلیٰ و عمدہ کتاب کو بہترین مصنفہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم نے اپنے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ لکھا اور اس کتاب کے مرتب ہیں ڈاکٹر مہنور زمانی بیگم۔ اس پروگرام میں پروفیسر منظور نعمان نے اپنی دلکش انداز میں قرأت پاک پیش کی اور بتا دیں کہ تقریب رونمائی پروگرام کی صدارت علی جناب عزیز اللہ بیگ وظیفہ یاب IAS نے فرمائی اور یہاں نظامت کے فرائض کو علی جناب ملنسار اطہر احمد صاحب، سابق ڈائریکٹر آل انڈیا ریڈیو بنگلور نے انجام دیے۔ اس شاندار کتاب کا بڑے ہی خوبصورت الفاظوں میں ڈاکٹر مہنور زمانی بیگم نے تعارف کروایا اور اس تقریب میں رسم رونمائی کو انجام دیتے ہوئے یہاں پر شریک ہوئے مہمانان گرامی نے اپنے بہترین اور عمدہ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بڑے ہی اچھے پیغامات دیے۔ بہترین تقریب میں اردو زبان سے بے انتہا محبت کرنے والے بڑی بڑی معزز اور اعلیٰ شخصیات نے شرکت فرمائی۔ سابق صدر شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی پروفیسر ایمن سعید، سابق صدر شعبہ اردو و عربی مدراس یونیورسٹی پروفیسر سید سجاد حسین، صدر انجمن ترقی اردو و نائب صدر KPCC بنگلور عالی جناب محمد عبید اللہ شریف، صدر محفل نصاب و رکن کرناٹک اردو اکیڈمی ڈاکٹر شائستہ یوسف، صدر اعظم اکیڈمی بنگلور ڈاکٹر آر عبدالحمید۔ ان تمام نے اس تقریب میں رسم رونمائی کو انجام دیتے ہوئے اپنے شاندار خیالات کا اظہار کیا، ساتھ ہی بڑے ہی عمدہ پیغامات دیے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس شاندار تقریب کی مزید تفصیلات۔ دفتر کے ان تمام کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ہی وہ اپنے طور پر تحقیقی اور علمی و فکری مصروفیات میں انہماک کے ساتھ سرگرم عمل رہی۔ یہ کتاب بھی جس کی آج رونمائی ہونے والی ہے، ان کی تحقیقی اور علمی مصروفیت ہی کا ایک ثمرہ ہے۔ ایک عرصے سے وہ اس کا مواد جمع کر رہی تھی، لیکن ابھی اسے کتابی شکل دینا باقی تھا کہ ان کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ کتاب کے بارے میں وہ بے حد فکر مند ہو گئی اور انہوں نے فائل میرے حوالے کی کہ میں اسے کتابی شکل دے کر ان تک پہنچاؤں۔ کام ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا تھا کہ انہیں فرشتے اجل کے ساتھ لبیک کہنا پڑا۔ وہ میری شفیق استاد، رہنما اور خیر خواہ تھی۔ ان کی شفقتیں اور احسانات میرا سرمایہ عزیز ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت میری شفیق استاد کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی کہ میں نے حق شاگردگی ادا کیا۔ اس کام کی تکمیل سے مجھے جو خطی سکون ملا ہے وہی اس کا صلہ ہے۔ بابِ اردو مولوی عبدالحق نے اپنے مستند فوائد میں لکھا ہے کہ تکرار لفظی اردو زبان کی ایک بڑی خصوصیت میں سے ہے۔ اردو میں تمام اجزاء کلام یعنی اسم، صفت، ضمیر، فعل اور تمیز سوائے حروف ربط و عطف کے ایک ہی ساتھ مکرر استعمال ہو سکتے ہی۔ انہوں نے اس بڑی خصوصیت کے بارے میں ایک پورا باب ہی وقف کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم نے بتایا ہے کہ یہ خصوصیت ہمیں اردو زبان کی سب سے پہلی تصنیف مثنوی قدمرو سے لے کر دور حاضر کے ادب کاروں میں بھی نظم اور نثر دونوں میں ملتی ہے۔ تکرار الفاظ کے عمل کو مفرد الفاظ کے ساتھ بھی اور مرکب الفاظ کے ساتھ بھی طرح طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے صرف شاعری میں مفرد الفاظ کی تکرار کا جائزہ لیا ہے اور اردو ادب کی ابتدا سے لے کر دور حاضر تک کی مختلف شعری اصناف میں اس خصوصیت کے استعمال کی مثالیں پیش کی۔ انہوں نے شاعری میں تکرار الفاظ کی خصوصیت کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے استعمال کو مقام استعمال کے اعتبار سے 3 زمروں میں بانٹ دیا ہے۔
जो कि साबिका, वस्तिया और लाहिका है। तकरार अल्फाज के साबिका इस्तेमाल की एक मिसाल हम अलामा इकबाल के इस शेर में देख सकते हैं। जर्रा जर्रा दहर का जिंदान ये तकदीर है, पर्दे मजबूरी वो बेचार ये तदबीर है। जर्रा जर्रा दहर का जिंदान ये तकदीर है, पर्दे मजबूरी वो बेचार ये तदबीर है। इस शेर के पढ़ते ही आसानी से मतलब हमारी समझ में आ जाता है कि दुनिया की हर चीज तकदीर की कैद में जकड़ी हुई है। कोई तदबीर इसे तकदीर की कैद से बच निकलने में कामयाबी अता नहीं कर सकती। हम सबको यहाँ जमा होने का मौका दिया। साथ ही इस किताब की मुरत्तिब डॉक्टर महनूर ज़मानी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी उस्ताद रहबर व रहनुमा डॉक्टर फहमीदा बेगम की वसीयत की तकमील करते हुए इस किताब की इशाअत का बेड़ा उठाया और इसे एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाया किया। इस किताब में आपका लिखा हुआ पुरमग़ज़ बेश कीमत मुक़द्दमा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। बड़ी अर्क़रेज़ी से आपने इक़बाल के कलाम के हवाले से तकरार अल्फाज का न सिर्फ जायज़ा लिया है बल्कि शेर में इस्तेमाल होने वाले तकरार अल्फाज का मफ़हूम भी बयान किया है और उसकी लसानी अहमियत पर भी रोशनी डाली है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जबकि उर्दू किताबों की इशाअत में काफ़ी हद तक कमी आई है, इस किताब की इशाअत यकीनन बाइसे फ़ख्र है और काबिल दाद भी। मुझे एक तरफ खुशी इस बात की हो रही है कि तकरार अल्फाज के मौजू पर शाया होने वाली ये पहली किताब है रियासत कर्नाटक में। दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि तकरार अल्फाज की रिवायत, जैसा कि अभी साबिक़ मुक़र्रिरीन ने कहा, उर्दू की पहली तसनीफ़ कदम राव पदम राव से शुरू हुई। इसे समझने, सोचने और इस पर गौर व फिक्र करने में हमें तकरीबन 600 साल लगे और आज इस मौजू पर एक किताब मंजर आम पर आई है। इससे अंदाज़ा होता है कि हम तहक़ीक़ के मैदान में कितने पीछे और कितने सुस्त रफ्तार हैं। हमारी इस रविश से मुतालिक हक़ानी अल-क़ासिमी इस तरह रकम तराज हैं। उर्दू अदब में तकरार अल्फाज एक जायज़ा, जैसा कि हम मेरे से पहले मुक़र्रिरीन ने फरमाया, एक तवील मौजू है। मीम नून सईद साहब का उनका क्या कहते हैं खलीजी खुतबा था। उसके बाद मैं जब उनके घर जाता आते थे, मैं और मुबीन साहब, आपने इस जो अभी उन्होंने स्टेज पे कहा इसका इजहार किया कि उन्होंने इसलिए नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि फहमीदा बेगम मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनका एजाज़ नहीं हुआ। तो मैं, हमारे दोस्त मुबीन मुनव्वर साहब जो है इस बारे में सोच रहे थे। उस सेमिनार के बाद जो है मीम नून सईद साहब और उनकी अहलिया जो है अमेरिका चली गई और जब वो अमेरिका में थे उस वक्त जो है फहमीदा बेगम साहिबा रामनगर में शायद थी, बरसात आ गई और वहाँ किताबों वो भीग गई। तो वो मैसेज हमें जो है आप व्हाट्सएप पे हमने देखा। तो उसके बाद हालात ऐसे हुए और वो इस दुनिया से चली गई। हालांकि ताज़ियती इजलास होते हैं और उनकी तारीफ की जाती है, लेकिन सही मानों में उनके होते हुए उनकी तारीफ, उनकी इज्जत करना ये हमारा फर्ज है। इसमें हमने कहीं ना कहीं चूक, हमारे से गलती हुई है, इसको हमें मानना चाहिए। फहमीदा बेगम साहिबा उर्दू अदब का एक ऐसा दरिया है, एक ऐसा चमकता हुआ सितारा है, अपने आप में वो खुद एक यूनिवर्सिटी है। उनके कितने हजार शागिर्द होंगे आज,
स्टेज पे ही जो है दो, हाँ आप भी हो माशाल्लाह वहाँ भी बैठे हैं, और मेरे बाद वो बढ़ेंगे, वो 10 सफ़ात से ज़्यादा उनका मजमून है। अब उनकी जब मैं किताबों पर नज़र डालती हूँ तो अदब और ज़िंदगी और अदब और उसके उसूल की तरफ देखती हूँ तो अखलाकियात सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अखलाकियात या फिर तहक़ीक़ की वजह से हम अपने अदब को बहुत ज़्यादा ज़िंदा रख सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि फहमीदा बेगम साहिबा ने तहक़ीक़ पर जो काम किया है उसके हमेशा से बहुत उसके पीछे रही और उस पर बहुत मेहनत भी की है। एक बार डॉक्टर साहबा से मेरी मुलाकात हुई और अवामी अदब और लोकगीतों का PhD का मकाला मेरे उस्ताद रही। अब यम्मे के बाद जब आमिना खातून साहबा की ईमा पर मैंने ये मकाला शुरू किया था, लेकिन 1978 में ही उनका इंतकाल होने के बाद मुझे कोई उस्ताद सिवाय फहमीदा बेगम साहिबा के, क्योंकि ये लिसानियात का था, सौतियात का था, बोलचाल की जुबान का था। मेरी जो थीसिस है वो किताबों को देखकर किताब लिखने की नहीं है, ये बुजुर्ग खवातीन के सीने में जो खजाना है, अल्लाह रसूल के जो गीत हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है। इस PhD पाने के लिए 78 से मुझे 2008 तक का सफर तय करना पड़ा। 30 साल की मेरी मेहनत रंग लाई और शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, जबकि मुमिनुल सईद साहब सर शोबे उर्दू थे, मुझे PhD की डिग्री तहफीज हुई उर्दू भी। अब इस क्या हुआ 1962 में आसिया बर्दों में UPSC के इम्तिहान में आपा ने हिस्सा लिया और डायरेक्टर तरक्की उर्दू ब्यूरो बनकर 1782 को चार्ज ले लिया डायरेक्टर के हिस्से से, और मेरा मकाला यहाँ अधूरा रहा। उसके बाद मैंने काफ़ी छानी, मद्रास यूनिवर्सिटी गया, केरला यूनिवर्सिटी गया, मैसूर यूनिवर्सिटी गया, कहीं कहीं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गया, धारवाड़ यूनिवर्सिटी गया, जाके कोई गाइड मिले। अवामी अदब पर, अवामी लोकगीतों पर कोई गाइड नहीं मिला मुझे। तो मिलने जुलने के और एक दूसरे को जानने पहचानने के बहुत मौके मिले, बेहद इंजाम रंज, बहुत मोहब्बती, और मतलब ये कि उनकी दोस्ती के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूँ कि गोया वो एक भाई की तरह अपनी दोस्ती को निभाते हैं। डॉक्टर और अब्दुल हमीद साहब हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, डॉक्टर फहमीदा बेगम के शागिर्द भी रहे हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर कर्नाटक में उर्दू के लोकगीतों पर काम किया है। ये बहुत ही अहम काम है। उन्होंने उर्दू के लोकगीतों को जमा किया है। कनाडा की रियासत है कर्नाटका, इसके बावजूद यहाँ शायद ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ लोकगीतों का एक बहुत बड़ा खजाना है जिन्हें आपने दरियाफ्त किया है। मैं आपका भी इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा तो सिर्फ महफिल निसा की निस्बत से नहीं बल्कि उर्दू की जड़ों को मजबूत करने के ताल्लुक से उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वहाँ सब के लिए मिसाल है। मैं अभी खत्म करता हूँ। डॉक्टर महनूर ज़मानी, जो आमतौर पर हम कहते हैं कि किसी महफिल में जो बहुत अहम शख्सियत होती है उसके बारे में हम कहते हैं कि ये महफिल का नौशाह है। शायद इसी निस्बत से मैं कहूँ कि डॉक्टर महनूर ज़मानी बेगम इस महफिल की दुल्हन है तो शायद गलत ना हो, क्योंकि सारी तवज्जो और सारा जो कुछ भी इस महफिल का है वो उनका दिया हुआ है। मैं आपका भी दिली खैर मानता हूँ। फहमीदा बेगम की तस्नीफ करदा किताब उर्दू अदब में तकरार अल्फाज का एक जायजा मैं उस किताब के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि किताब अभी मेरे हाथ पहुंची है। अगर ये इनायत जरा पहले हो जाते तो शायद कुछ कह पाता। बहरहाल बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, इल्मी बातें, अच्छे मशवरे, अच्छे ख्यालात, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाज़िरीन जलसा आखिर तक बैठे हैं, ये भी बहुत कम होता है। और एक बात मैं मेरी वालिदा के सिलसिले से एक बात बोलना चाहती हूँ
कि जब अम्मी का जो है उर्दू तरक्की उर्दू ब्यूरो में जो है अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उस टाइम में उर्दू को जनरली जो है पोएट्री के लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल हुआ करता था। तो हर जगह मुशायरे आम हुआ करते थे, और तरक्की उर्दू ब्यूरो भी मेरे ख्याल से मुशायरों में काफी वो लोग भी दिलचस्पी रखते थे अम्मी से पहले। तो जब अम्मी डायरेक्टर तरक्की उर्दू ब्यूरो बनी है, तब से उन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू जुबान सिर्फ एक पोएट्री की जुबान नहीं है, एक शेर व शायरी की जुबान नहीं है, उर्दू जुबान में अदब का भी बहुत बड़ा रोल है। और उर्दू जुबान में अम्मी जो है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की काफ़ी उन्होंने काम खिदमत अंजाम दिए हैं उर्दू जुबान में, जिसमें कि इवन आपको मेडिकल साइंस में उन्होंने किताबें लिखवाई हैं तरक्की उर्दू ब्यूरो के ज़रिए से, और ये कायनात में यूनिवर्स के बारे में उसके लिए हवाले से भी काफ़ी किताबें आई हैं। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है किताबें वो पेश करवाया है उन्होंने। तो एक बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन था कि उर्दू जुबान को इस तरीके से भी उन्होंने मोड़ा है। और एक बात जो थी वो कहती थी कि औले अल्लाह के भी हवाले से उन्होंने बहुत सारे बातें जिक्र का किताबों में हवाले किए हैं। सो दीन के एतबार से भी उर्दू जुबान का इस्तेमाल कर उजागर किया है उन्होंने। तो ये बात जो है हर किसी की बात नहीं थी, उनके दौर के बाद से उर्दू जुबान का जो इस्तेमाल है, जो उर्दू जुबान का जो फैलाव हुआ है, जो रियल प्रमोशन हुआ है, उसमें उनका उस ओहदे पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनकी आंख की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो कैटरैक्ट उनको हो गया था। उसके बाद वो कैटरैक्ट का उनका ऑपरेशन फेल हो गया था। सो उसमें उनकी आंख की बीनाई जाती रही, लेकिन उनका इतना अपने इल्म से, अपने उर्दू जुबान से इतना जज्बा उनका बुलंद था कि वो अपने इल्मी अदबी कामों में बिल्कुल उन्होंने कोई कमी, उसके बावजूद भी उसमें कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। वो जो है एक चलती फिरती उर्दू एनसाइक्लोपीडिया के जैसा उनका दिमाग था। तो माशाअल्लाह वो इतना उनको ज़हन में बहुत सारी उर्दू के मुतालिक जो है इल्म था, तो वो अपने जहन से ही बगैर किताब को रेफरेंस से लिए बच्चों को बुलाकर डिक्टेट कराकर उन्होंने 3 किताब तैयार किए उनकी 80% बीनाई के बावजूद। ये एक बहुत बड़ी बात थी। सो ये किताब भी उसी की एक किताब है। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया इस किताब के मुतालिक, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो रेफरेंस के लिए उन्होंने किताबें भी नहीं खोली, और जो है शेर और अशार तकरार अल्फाज के जो हवाले से निकाले हैं वो अपने जहन से निकाला है। यहाँ एक बच्ची मौजूद है, ये वो डिक्टेट करते थे और वो ये बच्ची लिखती थी। सो फैजा तो ये घर में बाकायदा रेगुलर सुबह आती थी और शाम तक वो जो है जो भी मम्मी डिक्टेट करती थी तो वो ये बच्ची जो है वहां पे लिखती थी। तो जिस मौजू पर ये किताब लिखी गई है, डॉक्टर फाहमिदा बेगम साहिबा ने इस मौजू पर जो किताब लिखी है, ये काफी जो है उर्दू जबान की अहम मौजू है और अहम खुसूसियत है। इसके बारे में फवायद उर्दू में मौलवी अब्दुल हक साहब ने एक बाब ही इसके लिए मख्तस कर दिया था। तो इसके बारे में लोगों ने जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसको जरा नजरअंदाज कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने इसे बहुत ही अहमियत देकर इसको काम में लाते हुए इब्तिदा से, उर्दू अदब की इब्तिदा से लेकर आज तक भी, दौर हाजिर तक भी जितने शेरी नमूने मिलते हैं, उन तमाम नमूनों में इस चीज को, इस तकरार अल्फाज की खुसूसियत को देखकर, उसका जायजा लेकर उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ इस बात का ये नतीजा निकालने की कोशिश की है कि ये बहुत ही ये एक ऐसा मौजू है जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन ये अगर आज इस मौजू को हम लेकर इस पर उसके गहराई में जाकर इसका तज्जिया करें
तो यहाँ हम एमए में भी इसका बारे में, एमए के स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पढ़ा सकते हैं, एमए फिल के लिए भी इस मौजू को हम सामने ला सकते हैं, और यहाँ तक कि इस पर पीएचडी भी की जा सकती है इस मौजू पर। तो ये बहुत ही अहम मौजू है। इस मौजू की मदद से जो है बहुत कुछ हमारे शोरा ने जो कुछ कहा है उसके बारे में हम वजाहत कर सकते हैं। तो इसलिए इस मौजू को उन्होंने बहुत अहमियत देकर इसका एक फाइल ही उन्होंने जमा किया था, जिसकी मैंने जो है तरतीब देकर इसके बारे में तो आपने 3 मौज़ूआत पर जी क्या है? 3 मौज़ूआत नहीं, एक मौजू को उन्होंने 3 ज़मरों में बांटा है। तो ये तकरार अल्फाज जो शायरी में इस्तेमाल हुई है उसे इन्होंने 3 ज़मरों में बांटा है, लाहिका, साबिका और वस्तिया। तो लाहिका के तौर पर शेर के आखिर में जब तकरार अल्फाज को शायर इस्तेमाल करता है तो उसे इन्होंने लाहिका कहा है। जब शेर के दरमियान में तकरार अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है तो उस वक्त जो है इन्होंने इसको वस्तिया जुमरे में शामिल किया है। मसलन लाहिके के तौर पर, लाहिके की मिसाल के तौर पर हम इस शेर को ले सकते हैं, चिराग बन के जुल्मतों को नूर में बदल गया, मेरा वजूद खामोशा सहर सहर अज़ा अज़ा। तो यहाँ पर आखिर में अज़ा अज़ा आया है तकरार लफ्ज़, तो इसलिए इस शेर को जो है उन्होंने लाहिके के जुमरे में शामिल किया है। एक और शेर है, याद है उनकी आंखों, याद है उन आंखों का वो आलम, नशा भी कम कम होश भी कम कम। ये जो है फिराक गोरखपुरी का शेर है। तो इसमें जो है कम कम जो है वो एक तकरार लफ्ज़ है, अल्फाज की मिसाल है, और ये तकरार अल्फाज यहाँ पर शेर के दरमियान में वस्त में इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने इसको वस्तिया का नाम दिया है। और फिर इसी तरह जब कोई शेर पत्ता पत्ता या हसरत मोहानी का शेर है, चुपके चुपके आंसू रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तो यहाँ पर चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तो ये शेर शुरू हो रहा है तकरार लफ्ज़ से, चुपके चुपके से, तो इसको उन्होंने साबिक़े के जुमरे में रखा है। तो इसी तरह से बहुत तकरीबन यहाँ से सफ़ा जो है 34 से सफ़ा 100 तक भी इन्होंने बहुत सा 24 तक 100 से बढ़कर जो है नमूने शेर शायरी के मुंतखब किए हैं, जिसमें नात भी है, हम भी है, और फिर मरसिया भी है, खसीदा भी है, और फिर बहुत कदीम जमाने के लोगों की शायरी भी है और अब की शायरी भी है। तो इन तमाम बातों को उन्होंने जमा करके इसमें इन तमाम बातों का तकरार अल्फाज का जायजा लेकर इन सबको जो है 3 हिस्सों में बांटा है, लाहिका, साबिका और वस्तिया। और उसी के एतबार से इसमें जो है लाहिकी के तौर से पहले इस्तेमाल जमा किया गया है, फिर वस्तिये के तौर पर शोरा का कलाम जमा किया गया है, और फिर आखिर में जो है लाहिकी के तौर पर शोरा का कलाम इसमें जमा किया गया है। तो उसकी मिसालें इस किताब में पेश की गई है। आज प्रोग्राम में डॉक्टर फहीमा बेगम के ताल्लुक से जिस तरह प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किए जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्लानिंग है इसकी, ये बहुत अच्छा मशवरा है, इसको करना चाहिए। इस तरह से अगर होगा तो डॉक्टर फाहमीदा बेगम की जो अहमियत रही है, जो उनकी खिदमत रही है उर्दू जबान के सिलसिले में, वो सामने आएंगी, वरना अब तक जो है इन पर ये पर्दा पड़ा हुआ है, इसको बेनकाब करना चाहिए और उनकी जो सही भी खिदमत रही है उन खिदमत को उर्दू दानों के सामने लाना चाहिए। आजकल डिजिटल का जमाना है जी, उसमें डिजिटल में कुछ इस बात का मुझे नाम पर आने वाली होगा, इंशाअल्लाह मैं इसकी कोशिश करूंगी और इसको लाने की कोशिश। नहीं, डॉक्टर फाहमीदा बेगम साहिबा ने अपनी पूरी फाइल मुझे दे दी, तो मुझे देकर वो मुझे बहुत करीब रखती थी, तो वो हर 15 दिन हर 8 दिन में एक मरतबा मुझे फोन करती, घर बुलाती, अपनी वो तमाम चीजें दिखाती और फिर उसके बारे में हम बहुत मुबाहिसा करते। तो इस तरह से जब वो उनकी हालत बिगड़ती चली गई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तुम ही इसके लिए बहुत मुनासिब शख्सियत हो, तुम ये ले जाओ फाइल और तुम ले जाकर वही जिस तरह से मैंने तुम्हारे सामने उसकी पेशकश की है
कि इस तरह से होनी चाहिए किताब। आप जाति पैसों से खर्च के या किसी से जाति पैसों से मैंने बनवाई है। जितने मेहमान आए थे उन लोगों के लिए, जी जितने मेहमान आए उन लोगों के लिए शुक्रिया। हाँ, उन लोगों के लिए पैगाम ये है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, वो आए यहाँ तक और पूरा मैडम की मोहब्बत में जो आए, हाँ, मैडम की मोहब्बत में जो वो यहाँ तक आए और हमारी दावत कबूल करके उन्होंने जो उतना वक्त हमारे साथ बिताया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और इनसे और इनकी किताबें आने वाली हैं। जी मैं एक और फाइल भी मेरे पास है, ये अल्फाज नफी का, तो वो भी मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और काम खत्म होने के बाद मैं उस किताब को भी सामने लाने वाली हूँ।